کہ ہر مرتبہ کی طرح آپ لوگوں کے درمیان نوجوان حضرات جو بھی ہیں وہ صفوں میں خاص طور پر گردش کریں، اور خواتین سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی بچیاں ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رومال وغیرہ دے کر وہاں پر بھی گردش کروائیں صفوں میں، اور کثرت سے پڑھتے جائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خواتین سے درخواست ہے کہ جو بھی خواتین یہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ پیچھے ایک دم پیچھے چلے جائیں، اور خواتین میں جو بھی معلمہ یا عالمہ ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ان کی امامت کرائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بدو آتا ہے نماز کے بعد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کوئی اس کی نماز پڑھائے گا کیا؟ تو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پورے کے پورے پیچھے جائیں، پیچھے جا کر سب بستہ ہو جائیں اور ان کی امامت کوئی عالمہ یا متعلمہ کرے، اور اسی طریقے سے جو بھائی تاخیر سے آئے ہیں ان کی بھی امامت کوئی ذمہ دے دے تو بہت مناسب رہے گا۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ لوگ جو تاخیر سے آئے ہیں پیچھے ایک سب بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ ادھر آخر میں جو میرے سیدھے ہاتھ کی جانب جو لوگ ہیں وہ اس طرف آ جائیے، ایک سب بنا کر باقاعدہ کیا ہے آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں، اور خواتین کیا ہے امانت داری کے ساتھ یہاں تک چندے کو پہنچا دیں۔ اور ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہ جو جاتے وقت راجا بیدی ہے وہ راجا بیدی میں دو ڈاکٹر آڑے ہیں، تو دھاری جو لوگ لے جانے والے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ راجا بیدی سے ہرگز نہ جائیں، دھاری اٹک جائے گی، اس طرف سے جائیں مین راستے سے۔ خواتین جو کھڑے ہیں میں درخواست کرتا ہوں پیچھے چلے جائیں، جو خواتین یہاں کھڑ کے ہیں انہوں اندر جاؤ ماں، میری بہنوں سے درخواست ہے جو لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر چلے جائیں۔ اور اسی طریقے سے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک خاص اعلان کیا گیا ہے کہ بچوں کو باقاعدہ رشتے داروں کے پاس امانت پہنچانے کے واسطے، گوشت پہنچانے کے واسطے ہرگز نہ بھیجیں۔ بچوں کو اگر بھیجیں گے تو ہم پکڑ کے باقاعدہ گاڑی کو بھی ضبط کر لیں گے اور بچوں کے اوپر کیس بھی بنائیں گے، وہ تو بولیں، تو لہٰذا بچوں کو گوشت دے کر بھیجو نہ ہو، جہاں تک ہو سکے بڑے اتنا کیا ہے اپنے رشتے داروں کے پاس جانا چاہیے اور گوشت وغیرہ تقسیم کرنا چاہیے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، جو دوسرے ہمارے بھائی آئے ہیں ان کے لیے آسانی ہوگی، آگے آ کر کے بیٹھ جائیں، مجلس میں کشادگی پیدا کریں۔ آپ لوگ سامنے آ جائیں، جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں وہ آگے آ جائیں۔ خواتین کے لیے جو عورتیں نماز پڑھ چکی ہیں، جو خواتین باہر جو خواتین ہیں ان کے لیے راستہ بنائیں، ان کو پیچھے چھوڑ دیں، ان
بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گی، ہمارے ساتھ عید کی نماز میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ان کے لیے راستہ دیں۔ معزز حاضرین عید الاضحیٰ، خواتین و حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی معروف و مشہور آیت تلاوت کی، جو عموماً آج کے دن اور آج ہی کے مناسبت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی عظمت والے دن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تاریخ، اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری اور چرترا رکھی ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینے مقرر کیے ہیں۔ اشہر حرم ان کو کہا جاتا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ تینوں مہینے اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ذی الحج کے 10 دن خصوصیت کے ساتھ، بڑی فضیلت کے، بڑی برکت کے، بڑی حرمت کے، بڑی اہمیت کے ہیں، اور ان 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم یہ ہے کہ ہم جو ہے روزے رکھیں، تسبیح پڑھیں، تکبیر پڑھیں اور اللہ کی تذکیر کرتے رہیں۔ اس کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن ایک بہت بڑا انعام رکھا، بہت بڑا انعام، جس کا تصور اور جس کا جو ہے خیال ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس ذریعے سے ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بخشتے ہیں، اتنا معاف فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کی وجہ سے شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگتا ہے، خاک ڈالتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری ہلاکت ہو، میری بربادی ہو، اپنی ہلاکت اور اپنی بربادی کا اعلان کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں عمر بھر ایک انسان کو گناہوں میں، برے کاموں میں، غلطیوں میں پھنساتا رہا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے بخش دیا ہے۔ میری ساری محنت، میری ساری کوشش اور میری ساری جو ہے محنت جو ہے اکارت چلی گئی، بیکار چلی گئی، اس کی وجہ سے وہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو معزز حاضرین، یہ ایسا بڑا برکت والا، مبارک اور عظمت والا دن ہے جس میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت عام ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ یہ شرائط بڑے کٹھن اور اہم معلوم ہوتے ہیں، بڑے جو ہے مشکل معلوم ہوتے ہیں، لیکن بڑے آسان ہیں۔ انسان ذرا غور کرے، ذرا اپنے نفس کو اور اپنے دل و دماغ کو کام میں لائے تو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے کتنا آسان ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک جذبہ، ایک شوق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طریقے سے اس کی اطاعت کی، فرما برداری کی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ بیٹے کو جب سنایا گیا، باپ نے سنایا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل، اے باپ کرو، جس کا حکم ملا ہے کرو، کچھ سوچے بغیر، سمجھے بغیر، پس و پیش کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر بیٹے نے کہا کہ جو بیٹا، باپ مجھے جو ہے کاٹ دیجیے، میرا گلا کاٹ دیجیے، کوئی جھجک نہیں، کوئی جو ہے پس و پیش نہیں۔ تو یہ اطاعت کا جذبہ، اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ جو ہے یہ فیضان رسالت تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی نہ جو ہے رسول بنے تھے اور نہ جو ہے کسی مکتب میں پڑھے تھے، مدرسے میں پڑھے تھے، اس کے باوجود اسماعیل نے کہا کہ مجھے کاٹ دیجیے اللہ کے لیے۔ قربانی کا یہ جذبہ۔ پھر ایک ماں کے پاس بھی جب شیطان جاتا ہے تو ماں کہتی ہے، ایک عورت کا جذبہ کہ جو ہے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، افسوس مجھے اس بات کا ہے، اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں اسے بھی تب بھی جو ہے میں اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ تو یہ ایک مثال ہے، ایک مختصر سی خاکہ آپ کا سامنے، بہت مختصر، بڑی لمبی جو ہے اس کی تاریخ ہے، میں کہنا نہیں چاہتا اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ان
तीनों के अंदर उस वक्त वो तीनों ही थे और कोई नहीं था। एक तो जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, दूसरे छोटे नन्हे मासूम हजरत इस्माइल थे, तीसरे थी उनकी माँ हजरत हाजिरा। इन तीनों के जज्बे ने एक तारीख बनाई, एक हिस्ट्री बनाई और एक चरित्र बनाया, और उसको आज तक अल्लाह ताला ने कायम रखा है, उसको हम करते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि जो है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। इसमें नोट कीजिए, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह को तुम्हारे जानवरों की जरूरत नहीं। शर्त तो ये लगाता है कि जानवर लंगड़ा ना हो, अंधा ना हो, दुम कटा ना हो, कोई है उसमें ना हो। फिर अल्लाह कहता है कि जो है तुम्हारे जानवरों की जरूरत नहीं, तुम्हारे गोश्त की जरूरत नहीं, उसे किसकी जरूरत है? तकवे की जरूरत है। तकवा क्या है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की। वो तो हमारे दिलों को देखना चाहता है, हमारे दिलों की कैफियत जानना चाहता है, उसे जानवरों की जरूरत नहीं। एक तो एक प्रोटीन है जो हमें आता है, हम खरीदते हैं तो गरीब किसानों को जो है उसको फायदा होता है, हम दबा करके तकसीम करते हैं तो गरीब लोग जो कभी ऐसा गोश्त नहीं खा सकते खा लेते हैं, और हम जो है इसके चमड़े से गरीबों में तकसीम कर देते हैं, चार लाचारों को देते हैं तो उसका भी फायदा होता है। कोई हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती और किसी की यह ताकत नहीं कि जो ऐसा मुनज़्ज़म इंतजाम कर सके। अल्लाह ताला ने एक कानून नाफिज किया तो जो है हम वो सब करते हैं। लेकिन जरा अपने आप को टटोलिए, अपने आप का जो है जायजा लीजिए, क्या हकीकत में हमारे अंदर ये इताअत का जज्बा है, ये इताअत की ख्वाहिश है, ये शौक है और ये तड़प है? नहीं, हमें दिखाई नहीं देता। हमें जो है कोई अमीर बनाया जाता है तो उसकी हम नापते हैं, उसको हम तोड़ते हैं, उसे हम जांचते हैं। अमीर का जज्बा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अगर तुम्हारे ऊपर एक हबशी गुलाम भी अमीर बनाया जाए उसकी इताअत करो, लेकिन हमें अमारत की ख्वाहिश उसके दिल में ना हो, मैं अमीर बनूं, मैं बड़ा बनूं, मैं जो है इनके जो है काम इनके ऊपर हुक्म चलाऊं, ये चीज नहीं होना चाहिए। बल्कि लोगों की ख्वाहिश पर तकवा बुनियाद बनाई गई है, उसके तकवे की बुनियाद पर लोग उसको अपना अमीर बना ले और उसकी इताअत करना इन पर जरूरी हो जाता है। अगर ये नहीं, अगर लोग ये देखें कि जो हमारे खानदान का है और हमारे जो है कबीले का है, हमारे गांव का है, तो ये भी एक किस्म की अज़बियत हो गई, इसकी भी जरूरत नहीं। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ही के दिन इस अज़बियत को खत्म किया, इस जो है खानदानी और जो है मुल्की और वतनी अज़बियत को भी खत्म कर दिया। आप हज्जतुल विदा के आयन मौके पर एक वाकया होता है, एक बहुत बड़ा तारीखी वाकया कि जो है एक औरत को गिरफ्तार करके लाया जाता है, पकड़ कर लाया जाता है। उस औरत का जुर्म साबित हो गया है। जुर्म यह है कि उस औरत ने चोरी किया है, और उस औरत का नाम क्या है आप जानिए। उस औरत का नाम इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर नेक अख्तर जिगर लगते जिगर का नाम हजरत फातिमा है। फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी का नाम। फैसला ये देते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बड़े खानदान की है, बड़े खानदान की है, मालदार खानदान की है, जिनकी साख है, जिनकी इज्जत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला यह होता है कि उसका जुर्म साबित हुआ है, उसने चोरी की है, उसके हाथ काट दिए जाएं, उसके हाथ काट दिए जाएं। इस्लाम में चोरी का यही जो है यही सजा है कि जो है चोर जो साबित हो गई जिसकी, उसे हाथ काट दिए जाते हैं। साहबा में किसी की हिम्मत नहीं। अभी भी जो है लोग इस्लाम कबूल किए हैं और इस्लाम में आ रहे हैं। फतेह मक्का के बाद पूरा मक्का इस्लाम में दाखिल हुआ था, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती कि जाकर के करें। एक सहाबी थे उसामा, एक सहाबी थे उसामा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे। ज़ैद बिन साबित अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालकड़े बेटे भी थे, बेटे थे। तो उसामा को आप पसंद करते थे, मोहब्बत करते
लोगों ने कहा कि आप जाकर के जरा कहो। बड़े बड़े साहबा को हिम्मत नहीं, हजरत उमर है, हजरत अबू बकर है, हजरत अली उस्मान है और हजरत अली है, इनको हिम्मत नहीं हुई। हजरत उसामा से कहते हैं छोटे बच्चे से कि जाकर के कहो कि अभी हमारी उम्मत जो है अभी इस्लाम कबूल की है, इन्हें कोई छोटी सी सजा दे, जिसे हाथ काटने के बजाय कोई सी छोटी और सजा दे, उन्हें माफ कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब तक 80 से खुश थे, अचानक आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, आप पर गुस्सा आ जाता है आपके चेहरे पर। कहते हैं कि जो है वल्लाही, खुदा की कसम खाते हैं, वल्लाही खुदा की कसम, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। खानदान कबीले अल्लाह ताला ने हमारी पहचान के लिए बनाए हैं। खानदान से कबीले से इकराम नहीं मिलता, तकरीम नहीं मिलती, बड़पन नहीं मिलता। खानदान और कबीले की तरफ अगर कोई बुलाता है तो ये जाहिलियत का नारा है। खानदान और कबीला कोई चीज नहीं, तकवा है, परहेजगारी है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। इसके वजह से जो है आदमी को ओहदा मर्तबा मिलता है। और इस चीज को अगर हम याद रखें और उसके बाद इताअत का जज्बा पैदा करें, ये ईद हमें यही सिखाती है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि जो बेटे को जबाह करो तो वो तैयार हो गए। बेटे को जब हुक्म मिला कि जो उनको गला काटने का हुक्म मिला है तो वो सर झुका दिए। माँ को जब मालूम हुआ कि जो उनके बेटे का गला काटा जा रहा है तो वो भी जो है तैयार हो गई। ये जज्बा हम सबको पैदा करना है। एक बच्चा होने की वजह से, एक नौजवान को, बाप होने की वजह से, हमारे बुजुर्गों को, माए होने की वजह से, हमारे खवातीन को, सबके अंदर ये जज्बा है इताअत का, फरमाबरदारी का, अल्लाह के सामने सर झुकाने का। तो हमें जो है ये मग़फ़िरत का ऐलान होता है अल्लाह की तरफ से। आज के दिन की मग़फ़िरत बख्शिश इसी के इकराम पर है कि एक बाप, बेटे और माँ ने एक बहुत बड़ी तारीख बनाई और उन्होंने वो मिसाल कायम की कि अल्लाह ताला को ऐसी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने आज तक उसको बाकी रखा। फिर उन्होंने दुआएं की, जिनकी दुआएं मकबूल हुई। आज हम दुआएं करती हैं, लंबी लंबी दुआएं, चौड़ी चौड़ी दुआएं, हमें समझते हैं कि अभी हमारी मुराद पूरी नहीं हुई। आधा घंटा दुआ करने के बावजूद हम ये समझते हैं कि अभी हमारी दुआ बाकी है। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह के उन्होंने कौन सी दुआ की थी? उन्होंने दुआ की रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो अब मुख्तसर की दुआ पढ़ो और बार बार पढ़ो। अल्लाह ताला क्या कहता है? अल्लाह ताला इसमें पैगंबरों की दुआ का तरीका सिखाता है कि वो दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं। दुनिया में भी अच्छाई दे और आखिरत में भी अच्छाई दे। दुनिया की अच्छाई ये नहीं कि आपको दौलत मिले, आपके पास बंगला हो, आपके पास गाड़ियां हो, आपके पास आप जो है लोगों पर हुकूमत करें, ये नहीं। आपकी दुनिया की अच्छाई ये है कि आपको ईमान मिले, इस्लाम मिले, इस्लाम पर अमल करने की तौफीक मिले, इस्लाम पर आप अमल करते रहे। ये दुनिया की अच्छाई है। आखिरत की अच्छाई ये है कि जो है आप आपके दुनिया के हिसाब से बच जाए और जन्नत में दाखिला आपको मिल जाए। ये दुनिया आखिरत की अच्छाई है। ये दुआ उन्होंने की। उन्होंने अपने बच्चों को दुआ जो की वो ये नहीं कि जो उनको बड़े बड़ी दौलत मिले, बड़े बड़े जो है बंगले हों, बड़े बड़े ऐशो आराम से हो रहे, कोई तकलीफ उनको ना उठे मिले, मैं जो है तकलीफ उठाया हूं, मेरे बच्चे परेशान ना हो, ये दुआ उन्होंने की नहीं की। उन्होंने कहा रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। परवरदिगारा मुझे तो नमाज पढ़ने वाला बना और मेरे बच्चों को भी नमाज का कायम करने वाला बना। ये दुआएं उन्होंने की। दोस्तों, तो दुआएं लंबी नहीं है बल्कि दुआएं बहुत मुख्तसर है। और पैगंबर की दुआएं, रसूलों की दुआएं, ये दुआएं जो है लंबी नहीं, छोटी है, बहुत बड़ी है, बहुत माना रखती है। आप इन दुआओं की अहमियत को समझिए। आपको जो है बहुत बड़े काम करने हैं, कुर्बानी देनी है, गोश्त तकसीम करना है। मैं इसको जानता हूँ, मैं लंबी तकरीर करना भी नहीं चाहता और न ही जो है मैं इसका कायल हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इताअत का जज्बा, फरमाबरदारी का जज्बा हजरत
इब्राहिम से, इस्माइल से, हाजरा से लेकर जाइए। उन्हीं के दुबैल में आज आप ईद मना रहे हैं। ये सब चीजें उन्हीं के लिए हैं। उसके दुबैल में अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश का ऐलान किया है। फरिश्ते आज जो है ये भी पूछते हैं कि परवरदिगारा, इसमें तो एक आदमी ऐसा भी है जो ऐसे ही आ गया था नमाज पढ़ने के लिए और ना ही उसकी ख्वाहिश थी कि जो है ईदगाह में जाकर बैठे। तो अल्लाह ताला कहता है कि ये मजलिस ऐसी मजलिस है कि इसमें आने वाला कोई महरूम नहीं होता। उस क्योंकि ऐसे ही आकर बैठ जाने वाले की भी मगफिरत है। मौजूद हाजिर बसरी तक बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर दोबारा आप लोगों से यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी गुजारिश है कि अपने अंदर के अनानियत को, अपने अंदर के जो है फख्र को, हसद को, कीने को, बोझ को दूर कीजिए। खुलूस और इल्लाहियत पैदा किए, खुशू और खुशू पैदा कीजिए। अल्लाह के लिए जो है अपने कुर्बानी देने की कोशिश कीजिए और अपने अंदर से एक भाई से और एक दोस्त से, एक आलिम से, हर एक से जो है बोझ को दूर करके अल्लाह के हो जाइए। यही ये कुर्बानी है। अपने नफ्स को कुर्बान कीजिए, अपने जज्बात को कुर्बान कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, अल्लाह को राजी कीजिए। अल्लाह अगर राजी हो गया तो आपको दुनिया और आखिरत की नेमत मिल गई। अल्लाह अगर राजी नहीं, दुनिया पूरी आपको मिल गई तो जो है सब बेकार है। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के लिए खुशो खुशू पैदा करने और अल्लाह ही के लिए कुर्बानी देने, अपने तमाम ख्वाहिशात को, जज्बात को और एहसासात को अल्लाह के सामने कुर्बान करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल कुरानिल मजीद व नफअना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफुन रब्बुल हलीम। गुजार कर लें। खास तौर पर जिन लोगों पर एतबार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ओके कर दिए हैं। इन हालात में हर मुसलमान के लिए जरूरी बनता है कि बाकायदा अपने हक के लिए आगे बढ़े, अपने हक को हासिल करने की कोशिश करना ये जिम्मेदारी बनती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि शादी के लिए जो तरीका फिक्स किया जाता, सब लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता। भाई को खास तौर पर क्या है, मौलवी साहब आप निकाह पढ़ाते नहीं, वहाँ पे जो होता है वही चलता रहता। और इसी तरीके से तलाक का कुछ भी मसला था लेकिन वो भी उसी तरीके से चलता। ये नहीं होना बोले तो बाकायदा घर से बाहर निकलना, निकल को बाकायदा अपना हक लेना। एक वाकया आपके सामने रखूं, जर्सी की बनावटी है लेकिन बड़ा एक्सीलेंट है। वो क्या बोले तो, एक मुर्गा था, वो मुर्गा सुबह के वक्त बांग देता था, अजान देता था। घर का मालिक क्या बोला, बाजू घर वाले की मुर्गी कैसा गच्चुप रहती कि तू भी गच्चुप है तो ठीक, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूं। तो मुर्गा बांग देना छोड़ा। फिर जरा दिनों के बाद बोला, वो मुर्गी जाको बाकायदा सब जगह चर के आती है, तू बैठ को खाता है, तू ऐसा नहीं करना, तू भी जाकर चर को आना, नहीं तेरे को मारा दूं। तो मुर्गा चरने से शुरू कर दिया। बाद में फिर जरा दिनों के बाद बोला, वो मुर्गी अंडे देती है, तू मुर्गा है फिर भी अंडे देना, तू नहीं दिया तो मार दो। अंडे कहां से दे सकता मुर्गा? उस वक्त उसको एक बात समझ में आई, जो बात हमारे को आज समझना है। वो क्या बात बोले तो, अजान देते जब गर्दन उठती तो जन्नत ज्यादा था। एक एक बात मान लेता अपने आप को दबा डाल को, अब अंडा दे सकता नहीं, उस पास से बचा दो। यही हालत हमारी होने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकायदा हमारे को राज्यंगम दिया, तो यूनिफॉर्म के सिविल कोड के ऑपोजिट खंडे का राज्यंगम हमारे को सिखाता है। वो राज्यंगम के खिलाफ में यूनिफॉर्म सिविल कोड तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी सूरत में हमें उठ के खड़े के बाकायदा अपना हक लेना है। ये लेने के सिलसिले में जब भी आपको दावत मिले तो लब्बैक कहो, पीछे मत हटो। कभी भी रहने मस्जिदों में इमाम साहब ऐलान कर देते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बारे में बाकायदा अपना प्लान काम करना पड़ेगा, तो करना ही करना है, कोई पीछे हटना नहीं। और दूसरी बात बड़े अफसोस के साथ बोल रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन में पीस कमेटी के वास्ते 50 अन्ना को लाओ बोल बोले। आप यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन जाना बोले तो डरती है हमें। ये हालत हमारी रही वो तो अच्छी नहीं है बात। पुलिस साहब भी हमारे सर के अंदर गई, बल्कि हमारे गुलाम है, वो गुलामी करते हैं, हमारे लिहाज से जो जो जरूरी काम होता है वो सब करते हैं। तो ऐसी सूरत में बाइक वाले हैं और राजा वीथी से गुजरे, और बाकी सब लोग क्या है मेन रोड से गुजरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा राजा वीथी में। और खासतौर पर गोश्त बांटने के सिलसिले में फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो भी माइनर लोग हैं उनको गाड़ियां देखो, गोश्त देखो, भेजो को भाई।
माइनर लोगों को क्या है खास तौर पे पकड़ने थी वो बोलेंगे उस वास्ते क्या है हमारी तरफ से गलती नहीं है करके देख लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है बड़े इतना जो होते हैं बाकायदा बच्चे लोग बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पसीना मौल साहब कितना मेरे को भी पड़े